नमस्कार दोस्तों। हमारे पास बहुत सारे गोल्स होते हैं और हमें ये पता नहीं चलता कि हमें किस गोल की ओर मूव करना है। और एक गोल डिसाइड भी हो जाए तो उस गोल को पाने के लिए हमारे पास कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, हमारे पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आज सदगुरु से हम इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। मैं अपने को पैनल अविनाश और डॉक्टर वर्षा के साथ इसी सवाल का जवाब सदगुरु से लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Your dreams, goals and desire, aspirations, it's good that you spend a little more time on it and see, will this really mean something to you even after 25 years, 50 years? If you're in your deathbed, will it still mean something to you? You must look at it. Whatever you're aspiring for, whatever you're dreaming of, whatever goals you have set, will it really mean something? Because most of these goals are traps. They're just traps. You get in, it's only one-way street, you can't turn back. I want you to look at this because many of them are older than you. You ask them what they dreamed of at 18, they're fortunate it didn't come true. Yes or no? If everything that you desired and dreamed came true in your life, could you live with it? Fortunately, many of those things got filtered and never came true, isn't it? So, it will be very good if anybody of your age, if they want to decide and fix the goals of their life, it'll be very good if they take a break from all influence that's around them. Social influences, family influences, other influences, withdraw somewhere, that's why an ashram. Withdraw somewhere, sit down, meditate, bring yourself to a certain level of clarity and joy. When you're very happy and clear, you must decide. Not in desperation you set goals. Desperate goals that you set will mean a lot to you at that moment. Tomorrow morning you look, you don't know why you're tangled up with it. So, it'll be good. If you're fixing your life, it's best that you do it when you're very, very peaceful, happy and clear-headed, isn't it? Not influenced by anything around you, simply by yourself. Sit and decide what is it that you really want to become in your life. What is it that will be of enduring value for you, not for somebody else, for you. And you don't have to build a personality for that, you strive for that. The necessary persona will come. You must understand what a personality is. The word personality comes from the word persona. Persona means in Greek or in Latin, I'm sorry, is a mask. This is a mask that they used to use in old theaters. Now, the same people will be playing many roles. Let's say Ramayana is happening. You have to play Rama's role also and Sita's role also and Lakshman's role also. For everything there's one mask. You hold this mask and speak like Rama, keep it down. Hold this mask and speak like Sita, keep it down. Hold this and speak like Hanuman and keep it down. This is how the plays were done. So it is those masks which were referred to as persona. So personality means you held a mask and mask got stuck to your face. You couldn't pull it out. That means you have a personality. अच्छा, एक बात आगे मूव करने से पहले 3 मिनट एक सदगुरु जी ने एक बात बोली है कि गोल्स, जब हम लोग पिछला वीडियो हमने जो बनाया वो यही था ना कि कोई लक्ष्य हमें मिलता है, व्हाई वी आर बॉर्न, इस टाइप का वीडियो था ना पिछले बार कि हमें जीवन का पर्पस, द पर्पस ऑफ लाइफ। तब भी हम लोग वही बात कर रहे थे ना, सदगुरु जी ने यही बात कही थी कि किसी चीज से हम लोग कोई पर्पस हो नहीं सकता जिंदगी में, किसी ने दिया नहीं है। वी ऑल डिसाइड बाय आवरसेल्फ। हमारे सिचुएशंस, हमारे सराउंडिंग हमें इन्फ्लुएंस करता है और ये गोल वाला चीज भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है। और मुझे लगता है कि अक्सर हम गोल बनाते हैं और उसको हम लोग अपने लाइफ का पर्पस कह देते हैं।
क्योंकि हम लोग बहुत लूजली इन दोनों टर्म को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि मेरे जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, लक्ष्य मतलब एम, मेरा जिंदगी का एक ही सपना है मतलब ड्रीम, मेरा एक ही गोल है, लक्ष्य, ठीक है, और एक ही मकसद है, द पर्पस। ये सारे वर्ड्स हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इसीलिए पिछले डिबेट में ना, पिछले वीडियो में हमारे साथ ये हुआ था कि हम लोग मैक्सिमम चीजें मतलब इन जनरल पब्लिक इसी चीज में कंफ्यूज रहती है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अविनाश जी, आपका सबसे पहला ड्रीम क्या था? मैंने इन शॉर्ट बताइए कि सबसे पहला ड्रीम क्या था आपका, गोल कोई भी लाइफ का, शॉर्ट में बताइए 2 लाइन में। कुछ बनने के मामले में? मैं अपने बनने के मामले में डॉक्टर था। आपका डॉक्टर था किस एज में? जब बहुत छोटा था, जब मम्मी को देखता था पेट में दर्द होता था। अच्छा, वर्षा तुम्हारा बताओ, तुम्हारा पहला ड्रीम क्या था एंड एट व्हाट एज? At 10 years of age, I want to be an artist. आर्टिस्ट। मेरा बताता हूँ, मेरा बचपन में था कि मुझको मार्शल आर्टिस्ट बनना है, और मैं 10th क्लास करने के बाद चला जाऊंगा हांगकांग, वहां पे और भी मार्शल आर्ट्स कुंग-फू सीखूंगा। मेरा ये था ये करीब 7-8 क्लास में, 6-7-8 क्लास की बात कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं, मतलब कितना एब्सर्ड है ना कि ड्रीम हमारे थे और उससे हम लोग मिलके कुछ भी नहीं। तो मतलब ओवरऑल जो गोल हम डिसाइड करते हैं, जैसे सदगुरु जी ने जैसे कहा कि वो सराउंडिंग को इन्फ्लुएंस, मैं मार्शल आर्ट सीख रहा था तो उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गया था। तुम शायद उसमें पेंटिंग वगैरह कर रही होगी वर्षा, तुम्हें आर्टिस्ट बनना था। आपने जैसे खुद ही बोला अविनाश जी कि आपने अपनी मम्मी का मम्मी को देखा। प्रॉब्लम देखा तो आपने डॉक्टर बनना चाहा। तो हम चीजें गोल्स अक्सर सराउंडिंग या सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होकर ही लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Personality is something that people are trying to develop because they have no sense of being. Instead of the real thing, you're trying to concretize a fake thing. If you are in touch with your being, why do you want a personality? It's not necessary. You can be a different kind of personality in different places. You are actually already. Or are you stuck with one personality? Some people are. People who are simplistic in their head have only one personality. Others have different personalities in different areas of life, isn't it? If you had seen me before like 1999, that is before the consecration of Dhyanalinga, I was a completely different kind of person, okay? To such an extent, everything about me was so different. Well before that things happened that was beyond me, but this was conscious. At that time I was single-minded towards a certain purpose, I was in a certain way. So after… I never thought I will live beyond that, but somehow things happened. Then I thought, okay, now that the work is over, let me change my personality completely. To fulfill that, I had acquired a certain kind of personality. And now that it's over, I thought, let me change it. And I told people around me, see, I'm going to change my personality. Don't be shocked, I'm still the same guy. They said, no problem, this. I said, just hang on, because things will change. Everything about me will change, the way I operate will change, the way I speak will change, the way I dress will change, the way I do, everything will change. They said, no problem, we know you, we love you with this. I said, that's okay, hang on tight, because when things change, people fall off. Lot of people fell off because they couldn't believe. Where is that person that they knew? That person just evaporated, you know This is a new person, they can't identify with this new person. I told them and changed. In spite of that, they fell off. So many of them. So many of them who were very dear to me and very close to me, they fell away because I changed so dramatically. And I told them I'm going to change because one phase of work is over, now it's time to change my personality. The way I look, the way I dress, the way I speak, the very way I am, everything about me. I even changed what food I like. I changed my personality, so I thought I'll change my food also.
So personality is something that you have taken on, but you have become so unconscious about it that you think it's for real. You're asking how to develop, that means you're making it up, right? Another word for developing is making up, isn't it? You're making it up. Make it up whichever way is suitable for your kind of activity, but you must be able to keep it down. If it gets stuck to your face, then it becomes misery. Then all suffering will come to you. You can take on any kind of personality, but when you want to keep it down, you must be able to keep it down. There was a sage. जो भी स्टोरी अभी सुनाने वाले होंगे उससे पहले जो ये बात बोले अविनाश जी, क्या कहते हैं, जो इन्होंने कहा, वर्षा तुमसे भी सेम क्वेश्चन कि वी शुड बी एबल टू पुट डाउन दैट मास्क व्हेन एवर रिक्वायर्ड, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेस द मिजरी। अविनाश जी, क्या लगता है आपको कि इस बारे में क्या मतलब क्यों बोल रहे हैं ऐसा? यहाँ पे जो सदगुरु है ना, ये मतलब अगर आप उस तरह से देखिए कि जो अद्वैत मतलब थोड़ा सा बड़ा वर्ड यूज करता हूँ यहाँ पे, अद्वैत वेदांता या फिर हम ब्रह्मास्मि जो बार बार होता है, उस टाइप का पर्सपेक्टिव से अगर आप जा रहे हैं तो आप कौन है? आप मास्क हो ही नहीं ना। आप अगर पहन रहे हो तो आप तो मास्क हो नहीं तो, लेकिन अगर आपने उस मास्क का गंदगी अपने में चिपका लिया या फिर उस मास्क का कुछ भी टुकड़ा आप में लगा हुआ है तो गंदगी ही है ना। आप तो हो नहीं वो। आप क्या हो? आप हो, जो हमेशा बोलता हूँ, साक्षी हो। आप देख रहे हो चीजों को, हो रही है चीजें। आप ना तो चीज हो ना तो होना हो, आप बस देख रहे हो। ना तो आप बॉडी हो ना तो एनवायरनमेंट हो। आप देख रहे हो कि बॉडी एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है और आप कैसे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हो। और अब इस बीच में आता है कि ये जो इंटरफेस है, इस पे हम लोग अपने आप को रिजिड हो जाते हैं कि यही मेरा इंटरफेस, जो यही मैं हूँ, यही मेरी पर्सनालिटी है। और उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद वहां से गोल्स की डिमांड करते हैं। अगर मैं पता चल गया कौन हूँ तो फिर इसका पर्पस बताओ कौन है, क्या है। क्योंकि अगर आपको मैं मटेरियल फॉर्म में डिफाइन कर दिया, देन इट शुड हैव ए मटेरियल पर्पस। तो आप समझिए हम लोग एक साक्षी हैं, आत्मा है, परमात्मा का एक कंटिन्यूअस पार्ट है, साक्षी जो देख रहा है बस। वो क्वांटम, सॉरी मतलब, हाँ भाई। वर्षा, कोई पॉइंट ऑफ व्यू इस पे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि यू शुड बी एबल टू कीप दैट मास्क अवे व्हेनेवर रिक्वायर्ड? मुझे ऐसा लगता है कि हम हर एक सिचुएशन में अलग बिहेव करते हैं। हम लोगों की हर एक सिचुएशन में अलग पर्सनालिटी होती है। तो और एक टाइम होता है जब हम खुद के साथ होते हैं, तो एटलीस्ट वो टाइम पे हम खुद को एज वी वो चीज को फेस करें। और रेस्ट हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में हम लोगों की अलग पर्सनालिटी होती है। और ये कह सकते हैं हम लोग पर्सन टू पर्सन भी हम लोग अपनी पर्सनालिटी चेंज करते हैं, और ये बुरा भी नहीं है। वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि वी शुड डू इट। मैं इस पे अपना कमेंट दूंगा एंड में, ठीक है? मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगा, ठीक है, बाद में। मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा था। चलिए। He was so wise. People went to him and crowds gathered. Then the king went to him and the king saw such a wise man should be in his court. So he told the sage, "You must come and become my chief minister, because a wise man like you shouldn't go waste sitting under a tree. You must be useful for the people." The sage said, "See, that's fine, but I have a condition. You must give me a room in your palace where I will spend every day 1 hour. You should never peep into that room, you should never ask me what it's about, you should never break into it, nothing. This room should be left unexplored by yourself, your servants, your secret agents and everybody." The king thought, that's not a problem. What's the problem with me? You want your room, why do I want to look into your room? Take it.
Then whenever any important meeting is to come, this man who's sage, now who's become a minister, so he's wearing appropriate clothes for the palace, but he goes in to this room and locks himself for 1 hour and comes out. A few months and years passed, but then after that, king's curiosity, it even got us to Mars. He wants to know what the hell is he doing inside. So rumors started all around, oh, he's doing something, he's got somebody inside, maybe he's an enemy agent, he suddenly landed here, what is he doing there, what is he doing there? Everybody, the whole palace started buzzing around with what is he doing in this room. Everybody wants to see what's in the room, but it's always locked. He goes in, spends time there and comes out. Especially when something important is to be done, he goes in. All kinds of rumors happened. So, one day, king couldn't hold it. King asked this man, I want to see what's in that room. He said, well, there's a promise you've given me. If you break the promise, I will leave. So he contained it. He doesn't want to lose the man. He's too wise. And then his other courtiers started talking, how can you allow this? We don't know what's happening inside. It could be dangerous, it could be this, it could be that. One day when he was not there, they broke open the door and went inside. They looked around, the room is empty, no furniture, no nothing, just empty room. They looked, nothing. Then what does he do here? Then in one corner they saw very, worn out clothing hanging there and a begging bowl. They went. They couldn't make out what this is. Then he came in. He said, well, you wanted to see, you have seen. The king asked, what do you do here? He said, whenever I want to make any important decision, I come here, wear my worn out clothes and sit with a begging bowl, clearly, that I don't want to be caught up with all the things of the palace. I want my wisdom not to be lost in these clothes and in this jewelry and in this stuff. So I come here, wear those clothes, sit with my begging bowl, make the decisions and then come out. Now you've broken the promise, and he left. So, this is what meditation is for you. Every day when you sit, you strip yourself down. You don't have to do anything about it. If you sit there simply, see, anything that's made up needs constant support from you, isn't it? See, suppose you tell a lie. It needs constant support to keep it up, isn't it? But if something is true, you can even forget it, but it's still there, isn't it? You understand what I'm saying? If something is true, even if you forget it, it's still there, no problem. But if it's a lie, you have to keep it up. Your personality is a lie. Your being, your existence is the truth. You don't have to keep this up. This will be anywhere there. What you make up for the sake of the society, to function in the society, you need a certain kind of makeup. You must be able to keep it down. If you're going to bed fully made up, then something wrong with you. तो लास्ट में ये यही बोलना चाह रहे थे ना कि जो आप मास्क पहन के अपनी पर्सनालिटी पहन के जो रहते हो उसको हटा के खुद क्या हो वो ही देखना चाहिए करके, यही बोलना चाह रहे थे ना। पर उससे पहले अगर पहले दोस्तों आप वीडियो को यहाँ तक देखें हैं तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ वर्षा, एक पॉइंट मुझे पहले ऐसा लगा कि जो वीडियो का जो हेडिंग था उससे अलग जा रही थी स्टोरी करके,
फिर मैं उसको लिंक करने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि वो ये बोलना चाह रहा है कि शायद हम लोग जो है वो पर्सनालिटी जो लोगों को दिखाते हैं कि हम ऐसा है वैसा है, जो एक काइंड ऑफ, तो उसको हटा के हम अपना शांति से डिसीजन ले सकते हैं। अविनाश जी, लास्ट स्टोरी क्या बोली आप? केवल स्टोरी के बारे में खाली? स्टोरी के बारे में वही सदगुरु अपना पॉइंट को फिर से रीएम्फेसाइज करना कोशिश किए कि, या मतलब कोशिश नहीं, वो तो कर दिए, रीएम्फेसाइज किए कि जो है हम लोग का जो है नेचुरल पर्सनालिटी इज दैट ऑफ बेगिंग मैन। हम लोग बहुत सारे पर्सनालिटीज पहनते हैं और अगर उसके मुंह में रह गए तो हमारे डिसीजंस गलत आएंगे। तो वो वहां पे वो मतलब ये स्टोरी से ये दिखाना चाह रहे थे कि वो सन्यासी एक वाइज मैन है, तो वो वाइज मैन अपना विजडम कैसे मेंटेन कर रखा है, तो वो अपना विजडम इसी तरह मेंटेन कर रखा है कि वो अपने आप को हर इवेंट में अपने आप को बेगिंग बॉल ले लेता है, तो भाई मैं इससे परे हूं, मैं तो जिंदगी चल जाएगा, तो जो करूंगा उसको सही से ही लूंगा, मतलब मेरा उससे कुछ गलत नहीं होगा, तो मेरा अटैचमेंट नहीं है, तो एक राइट मेरिटोरियस डिसीजन ले सकता हूं। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश किया। तो फिर ये एक कॉमन मैन के लिए क्या क्या रिलेवेंट है? मैं तो बेगर नहीं हूँ, मेरे पास तो बॉल भी नहीं है, मेरे पास फटे चिटे कपड़े भी नहीं है, तो हाउ दिस स्टोरी इज हेल्पिंग मी? आपको ये स्टोरी ये समझाने के लिए सदगुरु ने ये बोला यहाँ पे कि आप ये समझो कि आप साक्षी हो, आप वो जो कपड़े पहन रहे हो वो आप नहीं हो। और फिर ये बेगर इसलिए यहाँ पे लाया गया क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस का भक्त की कंडीशन है, तो बेटर भक्त इज अ बेगर भक्त। बट अगर आप में इतनी औकात है, आप ब्रह्मा हो, आप अवतार के फॉर्म में हो, तो आपका अलग रोल है। अर्जुन का अलग रोल था, लड़ाई करना था, बट उस सेंस में तो आपकी पर्सनालिटी हो सकती है बहुत फियर्स हो, आप बहुत अच्छे योद्धा हो, लेकिन आपको एक ये समझना है कि आपको जो लड़ रहे हो उससे कुछ मिल नहीं सकता है। आपको जो भी मिलेगा वो भीख में मिलेगा, और वो भीख भगवान दे रहे हैं, इन द सेंस कि मान लीजिए आपने बहुत सारा लैंड कैप्चर कर लिया विद द होप कि मैं इस लैंड पे बहुत सारे खेत उगाऊंगा और बहुत आम आएगा, बट हो सकता है जिस साल आपने सब कुछ कर लिया, आम लगाया, उस साल कीट आ गए और सारे कीट आम खा लिए। तो जो अगेन की फल आपके हिसाब में है नहीं, कर्म है, तो अगेन मतलब उधर में चला गया इसको लेके। बट आप समझो कि एज ए पर्सन यू नथिंग, तो ये मास्क भी आपका नहीं है। मास्क पहनोगे तो आपको दर्द आएगा कि ये मास्क जब हटेगा। मान लीजिए आपने मान लिया कि मैं एक अमीर आदमी हूं, बहुत बार होता है, जो सबसे ये मतलब आप इस कंटेक्स्ट में देखिएगा वो बहुत समझ में आएगा। जैसे अभी कुंभ मेला भी आ रहा है, तो अघोरी साधु सुने आप अघोरी साधु के पास द रिस्पेक्ट दैट दे विल गिव टू ए कॉमन मैन टू अ वेरी रिच पर्सन विल बी सेम। तो आप बहुत बार देखिएगा अघोरी साधु के सामने बहुत सारे अमीर आदमी जो है ना गाली खा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अमीर आदमी हूं, मैं जूता पहन के क्यों नहीं आ सकता हूं। तो वहां पे ये चीज आपको यहाँ पर हाँ, लेकिन मतलब आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसको अलग एस्पेक्ट थोड़ा देखा है स्टोरी को, हल्का सा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कि इसमें जो वो बेगर और बॉल के बारे में बात कर रहा है वो सन्यासी, वो बेगिंग बॉल को नहीं, एक्चुअली वो बोलना चाह रहा था मेरे अनुसार, सदगुरु जी ने ये बोला भी यहाँ पर कि उसका जो विजडम था जिस समय उस किंग ने उसको देखा, वो विजडम बिकॉज ऑफ इसलिए था कि उसके पास कुछ नहीं है, और मतलब वो सन्यासी था, और सन्यासी का रूप जो है कि ही हैज नथिंग, उसी टाइम वो प्रॉपर सन्यासी बन पा रहा है, और उसी टाइम वो वाइज डिसीजन ले पाता है, जिस डिसीजन को उसने किंग को पहली बार दिखाया था, अपना मेधा, अपना इंटेलिजेंस, जिससे किंग मैंने उससे इन्फ्लुएंस हुआ था, हाँ, इम्प्रेस्ड हुआ था। अब वो जब भी उसको डिसीजन, क्या स्टोरी में क्या था कि जब भी वो डिसीजन उसको लेना होता तो वो रूम में चला जाए, अदरवाइज वो बाकी टाइम किंगडम वाले कपड़े पहने घूम रहा है, मतलब एक दूसरा मास्क लगाया हुआ है एंजॉयमेंट वाला या फिर जो भी, लेकिन जब उसको वाइजनेस चाहिए तो वो वाइज फॉर्म में कन्वर्ट होता था, जो वो क्योंकि वो जानता है कि अभी मैं जो किंग वाले कपड़े पहने घूम रहा हूँ, राजा महाराजा टाइप का राज दरबारी वाले कपड़े पहने घूम रहा हूँ, अभी मेरा विजडम वो नहीं है। तो मतलब ऑल दिस थिंग्स आर मेटाफोरिक इस स्टोरी में, कि वो मतलब बोल रहा है कि को उस रूप में उतरना पड़ता है, उस रूप में हम्बल होना पड़ता है, उस रूप में जमीन पे जाना पड़ता है वो वाइज डिसीजन लेने के लिए, और तब आके वो 1 घंटे बाद
किंग को अपना सजेशन देता था। तो सदगुरु जी ने एक बात बोली ना इसमें कि दैट्स व्हाई मेडिटेशन इसी टाइप का है कि आप सोसाइटी में बहुत सारे रूप लेके निकलते हो। कभी आप इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हो, कभी किसी से रोमांटिक बात कर रहे हो, कभी पॉलिटिकल बात कर रहे हो, कभी बिजनेस वाइज बात कर रहे हो। लेकिन एक समय आपका जिंदगी में होना चाहिए हर रोज, जिस समय आप ये सारे के सारे मास्क निकाल के उतारते हो और सिर्फ आप खुद बनते हो, द रियल यू। At that moment, you should neither be a husband or wife or son or a politician or a businessman or a student. You should be nothing. You should be just you. और वो सारे आइडेंटिटी हमने, वो पहचान हमने सोसाइटी को दिखाने के लिए दी है कि मेरा ये रिश्ता है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा जॉब प्रोफाइल है, ये मेरा टैग है। वो सोसाइटी का मास्क है, चाहे सोसाइटी ने हमें दिया या हमने खुद को दिया। बट मेडिटेशन एक ऐसा चीज है जिसमें हम इन सभी से मुक्ति पाते हैं और तब हम खुद को पाते हैं। तो शायद इसी बारे में सदगुरु जी यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि एक समय आपको हर रोज अपना मास्क उतारना आना चाहिए और मास्क चेंज करना आना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ होता है, जैसे था ना ये व्हाई वी नीड टू चेंज दैट मास्क एट विल, जो वर्षा मैंने क्वेश्चन किया था, अविनाश जी जो आपने भी आंसर दिया था अद्वैत से रिलेटेड जोड़कर, और वर्षा तुमने भी कहा, जो मैंने कहा था कि मैं एंड में इसको बोलूंगा, तो इसी से जोड़ के बोल देता हूं मैं कि वो इसलिए बोल रहे हैं कि वी शुड बी कैपेबल टू चेंज द मास्क एट विल, कि प्रॉब्लम यही राइज होता है कि जब हम किसी एक मास्क से चिपक जाते हैं और हमारा पूरा आइडेंटिटी जो एक एज ह्यूमन जो प्योर सोल था वो हटकर वो जो मास्क है वो बन जाता है। वहीं से अहंकार पैदा होता है, वहीं से घमंड पैदा होता है, वहीं से हर चीज, सारी जो अवगुण जिसको बोलते हैं ना सोसाइटी में, वो उसी आइडेंटिटी से आता है। एक आदमी नेता बन गया तो वो अपने आप को सच में वो भूल जाता है कि वो एक साधारण इंसान था पहले, इंसान अभी भी है और कल भी वो एक साधारण इंसान ही रहेगा। पर वो उस मास्क से इतना चिपक गया कि उस मास्क ने उस नेतागिरी का अहंकार, पैसा, पावर, दबदबा, वो सारी चीज, ये सारी कुरीतियां उसके अंदर घुसी, तभी वो खराब इंसान कहलाता है। अदरवाइज नेता होने में कोई बुराई नहीं है, एट द मोमेंट उसको बिहेव करना है। पर वो हर समय अगर ये करने लगे कि वो किसी आदमी से, जब वो पॉलिटिकल रैली कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, डेफिनेटली नेता है, पर वो एक किसी आम आदमी से भी मिल रहा है तब भी वो नेता वाला ही हाथ मिलाया। वो घर में भी बैठा हुआ है तो नेता की तरह बैठा हुआ है, तो मतलब उस मास्क उस पर चिपक गया है। और प्रॉब्लम यहाँ हो गया है कि वो इंसान अपनी रियल आइडेंटिटी भूल चुका है और उसने एक गलत चीज या एक ऐसी चीज को ही अपना अस्तित्व बना दिया। तो वी शुड बी कैपेबल ऑफ चेंजिंग दैट मास्क। क्या बोलते हैं अविनाश जी? बात तो आपकी सही है। देखिए, जो अगर मैं इस पूरे वीडियो के बारे में एक समरी अगर मेरा रहे इस टाइप से, तो जो सदगुरु ने बोला कि हमारा गोल, तो उन्होंने सबसे पहले अटैक किया कि ये समझो कि तुम कौन हो। जब मोमेंट तुमको समझ में आ जाएगा तुम कौन है, तो तुम्हारा गोल भी पता चल जाएगा। और वो फिर उन्होंने बताया कि तुम जो मास्क पहनते हो वो तुम नहीं हो। और कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा वाइजेस्ट फॉर्म कौन सा है, तो आपने बताया कि मेडिटेट करके आपको आपका वाइजेस्ट फॉर्म पता चल जाएगा। तो ये मेरे लिए एक वीडियो का शॉर्ट समरी है। और मेरे तरफ से इस वीडियो पे कमेंट ये है, इस वीडियो में मैंने पहला बार जो है ना सदगुरु को देखा कि इस वीडियो का एक गुड अमाउंट ऑफ पार्ट इज ऑटोबायोग्राफी, अपने बारे में सदगुरु बता रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, मेरे को मतलब सदगुरु का पास्ट जो मैं सदगुरु को रीड कर पाता हूँ, मुझे जहां तक लगता है कि सदगुरु इंजीनियर थे। इनकी लाइफ, हाँ इनके लाइफ में पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं क्या? हाँ। और मेरे को जहां तक लग रहा है कि इनकी गर्लफ्रेंड या कोई जो डीयू वाली थी, मतलब ये काफी मतलब मेरे को ये लग रहा है कि इनका लिटरेचर और इंजीनियरिंग का बहुत स्ट्रांग कमांड है। तो पास्ट अपना बताने का कोशिश तो नहीं किया कि वो मिस्ट्रीज में रखे, बट जो मुझे उनको रीड करके समझ आता है कि वो इंजीनियर तो थे और डीयू नॉलेज मतलब लिटरेसी। अच्छा, तो यही चीज है। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन था स्टार्टिंग में कि वी ऑलवेज, ये मैं अपने ऑडियंस दोस्तों के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि सदगुरु जी ने स्टार्टिंग में एक बात बोली कि एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ हम लोग गोल्स चेंज करते हैं, और पर्सनैलिटी के बारे में बोले कि पर्सनैलिटी भी हम चेंज करते हैं। तो दोस्तों, ये स्पेशली मैं आप लोग को बोलता हूँ अपने छोटे से एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने भाई की तरह समझिए। एक सजेशन है कि हमें अक्सर लगता है कि हमें हमेशा कहते हैं ना लोग कि यार तेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, या फिर तू यार अप टू द मार्क नहीं है, यार तू इवॉल्व नहीं कर रहा है।
तो एक बात मैं कहता हूँ कि लोग इसमें डिप्रेस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार पर्सनैलिटी तो मैं लेके ही पैदा होता, या फिर अब यार मेरा इतना एज हो गया है, अब मैं पर्सनैलिटी कैसे होगा? मेरा अब तो ज़िंदगी भर मुझे यही लेके घूमना है। पर आपको एक बात बोलता हूँ दोस्त कि हम किसी भी वक़्त अपने पर्सनैलिटी पे काम करके चेंज कर सकते हैं। और अब तो सद्गुरु जी ने भी कही ये बात। और हमें ज़्यादा वक़्त लगता नहीं है, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर। इतने समय में आप अपने आप को बिल्कुल 0 से 180 पे ले जा सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड। अब वो चाहे आपका फिज़िकल पर्सनैलिटी हो, आपका बोलचाल तरीका हो, आपका नॉलेज हो, आपका एजुकेशन हो। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको 1 साल लगेगा अपने एजुकेशनल स्टाइल को बिल्कुल बदलने का। आप डम्ब स्टूडेंट से स्मार्ट स्टूडेंट में कन्वर्ट हो सकते हो विदिन 1 ईयर, क्योंकि आज के डेट में इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। फ्री में यूट्यूब वगैरह इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट इतना ज़्यादा है, आपको अंदाज़ा नहीं है। फ्री में नॉलेज अवेलेबल है। इट विल जस्ट टेक 1 ईयर ऑफ हार्ड वर्क। सिमिलरली पर्सनैलिटी वाइज, फिजिकल पर्सनैलिटी, आपको अगर बोलना नहीं आता, कम्युनिकेशन, बहुत लोग को ऐसा भी है कि जैसे हमारे सोसाइटी में इंग्लिश को बहुत तवज्जो दी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, एंड यू वांट टू बी ए गुड इंग्लिश स्पीकर, इट विल टेक जस्ट 1 ईयर कि आपको टोटल ग्रामर से लेके अच्छा खासा वोकैबुलरी डेवलप करके यू विल स्टार्ट स्पीकिंग ए क्वाइट गुड इंग्लिश। आपको अच्छा स्पीकिंग पावर चाहिए, कम्युनिकेशन पावर चाहिए, वो भी विदिन 1 ईयर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज 2025 आपका जो भी टारगेट है, किसी भी चीज में अपने आप को बदलना चाहते हो पर्सनैलिटी वाइज, हर चीज पर्सनैलिटी है, नॉलेज, फिजिक, स्पीकिंग पावर, कम्युनिकेशन पावर, योर प्रोफेशन, योर अर्निंग, एवरीथिंग इज अ पर्सनैलिटी। यू कैन चेंज इट इन दिस 2025। आई विल प्रे फॉर यू। तो फाइनल, अच्छा ये तो मेरे दोस्तों के लिए था जो देख रहे हैं, और अविनाश जी और वर्षा, यू एग्री जो मैंने कहा? यस Yes, एग्जैक्टली, completely. बहुत अच्छा बोल रहे थे। तो इसलिए क्योंकि ये जब सदगुरु जी बोल रहे थे ना कि हम लोग बदल सकते हैं, तो मैं हमेशा ये अक्सर लोगों को बोलता हूँ, पर बहुत से लोग बिलीव नहीं करते हैं कि यार नहीं यार, अब तो मेरा हो गया है यार, अब कैसे बदलें? नहीं, इट विल जस्ट टेक 6 to 1 ईयर। किसी भी फील्ड में यू कैन चेंज योर सेल्फ एट एनी एज ऑफ योर लाइफ। अब मैं बोल रहा हूं ना, कोई भी आप रैंडम से रैंडम आदमी भी लेके आओ मेरे सामने, अगर उसने मेरे सारी बातें मान ली, वो 1 ईयर में अपने आप को पहचान नहीं सकता। बदल दूंगा मैं। मैं तो और यही यहाँ है। पे इसका जोकी यही सेम चीज बोलिए को बोलिए। एक मतलब जो चीप पीजे बोलते हैं जोक के हिसाब से, 1 साल में कैलेंडर भी बदल जाता। तुम तो इंसान हो। तुम तो इंसान हो, क्यों नहीं बदलोगे? तो ओवरऑल वर्षा, कैसा लगा ये वीडियो? गुड, अच्छा था। और हाँ, और मैं लोगों को एक बात और बोलता हूँ, आपको, वर्षा को और खुद को भी हमेशा ये बात बोलते रहता हूँ कि वी शुड नेवर स्टिक विद वन गोल और वन एम इन आवर लाइफ। आवर लाइफ इज वेरी डायनेमिक। एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ यू विल फाइंड कि यार नहीं, अब मैं ये नहीं, ये करना चाहता हूँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है। डोंट आस्क फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ पीपल। ये मत ढूंढो कि लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, इट्स योर ब्रेन, इट्स योर लाइफ, कंप्लीटली योर लाइफ। आपको जो करना है करो, बस शर्त यही है कि किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। आप अगर कुछ भी रास्ता चूज करते हो, किसी भी समय अपने जिंदगी में रास्ता बदलते हो, बिल्कुल वैलिड है। नदियां भी इसी तरह चलती हैं, वो भी हर वक्त एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती हैं, उसे भी बदलना ही है। हवाएं भी स्ट्रेट में नहीं चलती हैं, कोई हवाओं के चलने का कोई गोल नहीं है, पानी के बहने का कोई गोल नहीं है, पर उनको पता है कि उनका अंत कहाँ है। तो हमें सिर्फ अपना अंत याद रहना चाहिए, बाकी रास्ते तो मचल के ही चलना है। क्या बोलते हैं? सही है। तो चलिए आज ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर यहाँ तक आए हैं तो एक लाइक कमेंट शेयर बनता है, अगर दे दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी स्टिल ऑल ऑफ यू विश यू हैप्पी न्यू ईयर। इस साल का पहला वीडियो है इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस साल में हर वो कुछ पाएं जो आप पाना चाहते हैं विद योर हार्ड वर्क। अविनाश जी, वर्षा जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, पीस।